नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के तीथल तट पर सीढ़ियां जर्जर होने से पर्यटकों को नीचे उतरने में परेशानी। तीथल समुद्र तट पर कई सुविधाओं की कमी को दूर करने की लोगों की मांग। दमन वैदिक डेंटल कॉलेज में अंगदान अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पारडी हाईवे पर कार में शराब ले जाते हुए 8.64 लाख के माल सामान समेत ड्राइवर को पुलिस ने धर दबोचा। शराब भरवाने वाला अर्पित उर्फ कबीर सिंह और मंगवाने वाले समेत 2 वांटेड। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के तीथल तट पर सीढ़ियों पे हो रहे कटाव से पर्यटक नीचे उतरने में परेशान हो रहे हैं। तीथल समुद्र तट पर कई सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए लोगों की मांग है। गुजरात के पर्यटन स्थलों में प्रमुख वलसाड के मनोरम तीथल समुद्र का क्षरण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण समुद्र तट पर बनी सुरक्षा दीवार के पास में बनी सीढ़ियों पे हो रहे कटाव से सैलानियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जल्द ही तीथल समुद्र तट पर सीढ़ियों सहित बैठने की व्यवस्था की मांग की गई है। वलसाड के तीथल बीच पर सुविधाओं की कमी के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए समुद्र तट पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नीचे उतारी जाने वाली सीढ़ियां समुद्री ज्वार की भारी लहरों में टूट गई है और बहुत जर्जर हो गई है और इस सीढ़ी का छोटा सा काम सैलानियों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही तीथल पर कई सुविधाओं का अभाव है। इसके साथ ही नए स्टॉल बनाने का काम भी काफ़ी समय से रुका हुआ है। तीथल तट पर कई सुविधाओं की कमी के कारण लोग इनकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। તીથલ બીચ જે છે એ ફક્ત વલસાડ તાલુકા પૂરતો નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતના મુસાફરો અહીં તીથલ બીચ પર મજા આનંદ માણવા માટે આવે છે। એટલે આ બીચ એ ગુજરાત લેવલનું એક પ્લેસ છે અને આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ આ બીચને ડેવલપ કરવા માટે ટ્વીટ કરીને બી એણે સૂચના આપેલ છે। એટલે એના અનુસંધાનમાં હું ગઈ ટર્મમાં પણ ધારાસભ્ય તરીકે આ તીથલ બીચના ડેવલપમેન્ટ માટે માંગણી કરી હતી અને એને ગ્રાન્ટ પણ સરકારે આપી છે। હવે જે તે કક્ષાએ કામગીરી કરી પણ સ્વાભાવિક છે આ તીથલ બીચ પર 15 ફૂટ મોજા ઉછળે છે। આપણા આ ડીપરજોલ સાયક્લોઝોન આવી ગયા, 2 સાયક્લોઝોન આવી ગયા, એટલે ઘણું બધું જે કામ કરે એટલે નુકસાન થાય એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે। છતાં પણ ફરીથી હમણે જ્યારે તીથલ બીચનું ડેવલપમેન્ટ અગાઉની ગ્રાન્ટમાં 75 લાખ રૂપિયા જે બચેલા છે એ 75 લાખ કલેક્ટર હસ્તક છે અને કલેક્ટર હાલમાં ફરીથી એ ડેવલપમેન્ટ થોડું ઘણું રિપેરિંગ અને જે બધી જે શોપ છે શોપને સાઈડમાં ખસેડીને એના આખો બીચ ડેવલપમેન્ટનું કામ કલેક્ટર હવે હાથ પર લેશે। તદુપરાંત વધુ ડેવલપમેન્ટ માટે હજુ પણ કેમ કે આ તીથલ બીચ મેં અગાઉ કહ્યું તેમ એ પ્રવાસન વિભાગમાં એની સામેલ કરવામાં આવેલું છે। એટલે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા આ બીચના ડેવલપમેન્ટ માટે કેમ કે બંને બાજુ એક બાજુ સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, એક બાજુ સાંઈબાબા મંદિર છે, અનેક લોકો આ સ્થળ પર આવે છે। એટલે મેં એક લક્ષ્યમાં લઈને પ્રવાસન વિભાગના મંત્રીને અને એના આપણા ગુજરાતના અને વલસાડના નાણામંત્રી શ્રી આદરણીય કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબને મેં રજૂઆત કરી છે। બજેટમાં ઓલરેડી 1 કરોડ રૂપિયા ફાળવેલા છે જ આ તીથલ બીચના ડેવલપમેન્ટ માટે, છતાં પણ 1 કરોડ પૂરતી ગ્રાન્ટ નથી। એટલે વધુ ગ્રાન્ટ વધુ ડેવલપમેન્ટ માટે હજુ પણ આ બીચના ડેવલપ માટે મેં મારી રીતે લેખિતમાં આ નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ અને પ્રવાસન વિભાગના મંત્રી મૂળજીભાઈ બેરાને આ બાબતે મેં લેખિત જાણ કરેલી છે। હાલ દરિયા પર જે પગથિયા અને ઉપરનો ભાગ જે છે જે મોટી ભરતી અને વરસાદના કારણે ખૂબ જ જર્જરિત હાલતમાં છે। હાલ પગથિયાનું કામ ચાલુ છે। એ પગથિયા લગભગ 15-20 દિવસમાં એ પગથિયાનું કામ પૂરું થઈ જશે અને ટૂંક જ સમયમાં જે આ જર્જરિત જે દરિયાના પાણીના વધારે મોજાના લીધે જે ડેમેજ થયેલું છે અને ટાઇલ્સો બધી નીકળી ગયેલી છે, તો એ આપણે કલેક્ટરશ્રીને અને સંબંધિત ખાતાને આપણે અરજી દ્વારા આ કામને શરૂઆત કરવાની શરૂઆત થઈ જશે। હાલ
જે વિકાસના કામો અટકી જવાનું કારણ કે જે દરિયા પર જે ફંડ ફાળવવાનો હોવો જોઈએ તે ટાઈમસર ફળવાતો નથી અને આવનારા સહેલાણીઓને તકલીફ ભોગવવાની દિવસો આવે છે. વલસાડના તિથલના વિકાસની વાત કરીએ તો પાછલા એક દાયકાથી જ્યારે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની વાત આવેલી ત્યારથી વિકાસની વાત શરૂ થયેલી. તિથલના વિકાસની વાત એટલે માટે પણ રાજકારણીઓને ગમે છે કારણ કે દક્ષિણ ગુજરાત અને મુંબઈ સુધી તિથલ લોકોના દિલમાં છે. લોકો તિથલને પ્રેમ કરે છે. તો આ આધ્યાત્મિક જગ્યા છે તિથલ, એટલે માટે તિથલને વિકાસના મુદ્દા પર લઈ જવું રાજકારણીઓ માટે એક મહત્ત્વનો મુદ્દો હતો. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતથી તિથલના વિકાસ માટે કરોડો રૂપિયા ફળવાયા. પ્રોટેક્શન વોલની વાત કરીએ તો એમાં કરોડો રૂપિયા ફળવાયા. ડિસેબલ ફ્રેન્ડલી બીચની વાત કરીને કરોડો રૂપિયા ફળવાયા. સતત કરોડો રૂપિયાનું આંધણ થયા બાદ પણ આજની તારીખે તિથલ એ બરબાદ સ્થિતિમાં તમને જોવા મળે છે. લોકો હંમેશા તિથલને દિલમાં રાખે છે પણ એના વિકાસને જોઈને દુઃખ વ્યક્ત કરે છે. આવું કેમ? ભારત આખાની અંદર વિકાસની વાતો આજે વિશ્વમાં ગાજી રહી છે. તો ભારતના વિકાસમાં તિથલનો વિકાસની વાત જ્યારે લઈને આવીએ ગુજરાતમાં તો તિથલ તો હંમેશા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચા બાદ પણ વિકાસને લઈને છે તો દુઃખમાં જ પડ્યું છે. વિકાસને લઈને એની સ્થિતિ हमेशा नाजुक જ છે. दमन वैदिक डेंटल कॉलेज ने अंगदान अभियान के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश के विभिन्न जिलों में अंगदान जागरूकता अभियान चलाया गया. दमन जिला भाजपा अध्यक्ष एसपी दमनिया के नेतृत्व में दमन में वैदिक डेंटल कॉलेज में अंगदान अभियान पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वैदिक डेंटल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वैदिक डेंटल कॉलेज के डीन सिन्हा की विशेष उपस्थिति रही. अन्य उपस्थित लोगों में माजिद लधानी, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पटेल, दमन जिला भाजपा मंत्री किरीट दमनिया और राज्य किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष धनसुख पटेल शामिल थे. पटेल सहित वैदिक महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं विद्यार्थी उपस्थित थे. कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सुंदर रंगोली बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी. 17 तारीख को हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर ने सभी को लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूं कि आज राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, लोकसभा में परसों हो गया था वुमेंस रिजर्वेशन बिल, तो सब वुमेंस को भी बधाइयाँ. और मोदी है तो सब मुमकिन है और उन्होंने इतना देश के लिए, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, इसके लिए इतना किया है. हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, फील्ड में, फॉरेन में आप G20 समिट में देखोगे हमारा गर्व करा दिया, विश्व में नाम कर दिया और सभी फील्ड्स में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है. तो उन्होंने कहा कि बर्थडे सेलिब्रेट रियली करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहा मोदी जी आपको क्या चाहिए? मोदी जी सिर्फ देना जानते हैं और दे रहे हैं, देते रहेंगे. और उन्होंने लेकिन एक थिंग कहा कि अगर रियली अगर सेलिब्रेट करना चाहते हो तो ये पूरा सेवा पखवाड़िया के रूप में मनाइए. किसी की सेवा करो, चाहे ओल्ड एज होम की है, चाहे आप स्कूल्स में करिए, चाहे फ्रूट्स बांटिए, हॉस्पिटल्स में जाइए, ऑर्गन्स डोनेट करिए. ऑर्गन्स डोनेट का मेन थीम है आज ये, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जब मर जाता है तो वो शरीर काम का नहीं होता है. तो एक लिंक जनरेट की है. आज वैदिक डेंटल कॉलेज में एक रंगोली कॉम्पिटिशन रखा था, मोदी जी की माता जी का और मोदी जी का बहुत अच्छा रंगोली का कॉम्पिटिशन हुआ. लेखा लेके नारे बनाए, विश किया, सभी स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर को विश किया और साथ ही में ऑर्गन डोनेशन का कैंपेन भी किया, प्लेज भी ली, क्योंकि किसी को ये ऑर्गन्स आपका डोनेट करोगे आप तो ये ऑर्गन किसी न किसी की जान बचा सकता है. और आफ्टर डेट कोई ऑर्गन्स आप ओरियन या 2 घंटे में कर सकते हो, लंग्स है वो आप 6 घंटे में कर सकते हो, किडनी है वो आप 30 घंटे में कर सकते हो. वैसे आप अपने ऑनलाइन में रजिस्टर कर दिए, वो आप कर सकते हो. तो आज हमारा बहुत बड़ा कैंप रहा और बहुत बड़ा सपोर्ट रहा. वंस अगेन आई विश आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैप्पी बर्थडे. पारडी हाईवे पर कार में
8.64 लाख रुपए की शराब ले जाते हुए एक ड्राइवर को पकड़ा गया। शराब डिस्पेंसर सिलवासा का अर्पित उर्फ कबीर सिंह और ऑर्डर करने वाले सहित 2 वांटेड हैं। वलसाड एलसीबी की एक टीम पारड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गश्त पर थी। इसी दौरान शराब तस्करी की सूचना के आधार पर एकता होटल के सामने मुंबई से अहमदाबाद की ओर जाने वाले ट्रैक पर निगरानी रखी गई। फिर कार को आता हुआ देख पुलिस ने रोका, जिसमें जांच सीट के पीछे एवं सामने 3 बैग से शराब की 84 बोतल मिली। पुलिस ने कार चालक राजू देवराज उपाध्याय सिलवासा मूल निवासी बिहार को पकड़ लिया तथा शराब की मात्रा के बारे में पूछताछ करने पर अर्पित उर्फ कबीर सिंह धीर सिंह तोमर सिलवासा ने यह शराब भरी थी तथा राजा कड़ोदरा, जिसका पूरा नाम ज्ञात नहीं है, उसने शराब मंगवाई थी। पुलिस ने दोनों को वांछित दर्शाया एवं शराब की मात्रा, कार, मोबाइल सहित कुल 8.64 लाख का मुद्दामाल जब्त किया और पारड़ी पुलिस स्टेशन में निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। वापी के हरिया हॉस्पिटल के पास एक महिला की i20 कार में एक सांप घुस गया। कार को गैराज में ले जाकर खोलने के बाद वर्धमान शाह ने अगले दिन छत से सांप का रेस्क्यू किया। वापी तालुका के हरिया अस्पताल में मरीज से मिलने आई एक महिला की कार में सांप पाए जाने पर एनिमल रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद टीम के वर्धमान शाह मौके पर पहुंचे। अस्पताल से मरीज से मिलने के बाद महिला ने घर जाने के लिए कार स्टार्ट की तो डैशबोर्ड पर सांप देखकर डर गई और सांप के डेस्क के अंदर घुस जाने के कारण उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद ड्राइवर ने सावधानी से गाड़ी को हरिया अस्पताल से गुंजन तक चलाया और गाड़ी को गैरेज में ले गए। गैराज के मेराज भाई ने 3 से 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद डैशबोर्ड खोला, लेकिन सांप का कहीं पता नहीं चला। सांप छिपा हुआ था कार की छत पर। वर्धमान शाह को तुरंत इसकी सूचना दी गई और वे उस स्थान पर पहुंचे और सांप को छत से बचाया। हालांकि सांप 3 फीट लंबा और गैर विषैला रूप सुंदरी या वन सुंदरी बताया गया। सिलवासा जिला पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर 6 नई गाड़ियों का किया शुभारंभ। सिलवासा में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के निर्देश पर जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक पंचायत को नए डस्टबिन उपलब्ध कराए गए थे, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया। रुर्बन क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड ने भी कुछ दिन पहले सिलवासा नगर पालिका में नए वाहन लॉन्च किए थे। जिला पंचायत में 6 नई कचरा गाड़ियों का शुभारंभ किया गया। मौके पर जिला पंचायत सीईओ, निर्वाचित प्रतिनिधि व मंत्री समेत पंचायत कर्मी मौजूद थे। दमन में 3 दिवसीय गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे की धुन पर झूमे श्रद्धालु। 2.5-3 दिनों तक श्री जी की प्रतिमा को समुद्र तट पर विसर्जित करने के बाद भक्तों ने विदाई दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन में गणेश चतुर्थी के मौके पर भक्तों ने धूमधाम से बप्पा की स्थापना की। गणपति जी 3 दिवसीय प्रवास यात्रा पर निकले। यात्रा में डीजे, ढोल, नगाड़ा, डीजे की धुन साथ श्रद्धालु शामिल हुए। भावी भक्तों ने गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना के बाद दमन सागर के तट पर श्री जी की मूर्ति का विसर्जन किया और गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस लवकरिया की ध्वनि गूंजी और श्री जी को भक्तों ने विदाई दी। इसके साथ ही दमन समुद्र तट पर पुलिस की कड़ी मौजूदगी और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात दिखी। दमन के वाकड़, सूरा, पालिया युवक मंडल सहित विभिन्न स्थानों पर भक्तों ने 3 दिनों तक श्री जी की प्रतिमा को विदाई दी। वापी के सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश वागरेचा ने 9 दिनों तक तपस्या की। तपस्या, त्याग और क्षमा के महान त्योहार के अवसर पर वागरेचा परिवार द्वारा भव्य उत्सव मनाया गया। महान तपस्वी युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी शक्ति सम्राट एवं नवम अधिष्ठात्री साध्वी प्रथम विश्रुत विभाजी के आशीर्वाद से जैन समाज के साधक मुकेश वागरेचा ने वापी में पर्युषण व्रत का पालन किया। तपस्या, त्याग और क्षमा के पर्व के अवसर पर वागरेचा परिवार द्वारा वापी के मीरा बैंक्वेट हॉल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। पर्युषण के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुकेश वागरेचा ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 900 बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क सेमिनार के साथ ब्लड कैंप का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के मेवाड़ निवासी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और तपस्वी मुकेश वागरेचा के पिता सागरमल वागरेचा ने कहा कि उनके बेटे की 9 दिनों की तपस्या और सभी कर्मों से मुक्ति की आत्मा को उज्जवल कर दिया। जैन समाज के सैकड़ों अनुयायियों की मौजूदगी में तपस्वी मुकेश वागरेचा के पिता सागरमल जी, माता रतन देवी सहित परिवार के सदस्य जितेश, ममता डागलिया, डिम्पल, सानिया सहित रिश्तेदारों और दोस्तों ने पालना किया। सूरत की प्रसिद्ध जैन गायिका अभिलाषा बाटिया ने अपनी मधुर आवाज और संगीत से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मामलतदार हीरालाल जी उपस्थित थे तथा राजेश दुग्गड़,
भीकम जी, रतन देवी, रमेश कोठारी, दितेश वागरेजा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मेरा नाम करुणा वागरेचा। आज मेरे देवर के 9 की तपस्या है, तो उनकी तपस्या के अनुमोदना हेतु हमने आज यहाँ पारने का प्रोग्राम रखा है। कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तब वह श्रावक नहीं होता। श्रावक तभी होता है जब वह अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र को अपनाता है, उसका उपयोग करता है। लौकिक दृष्टि से 3 रत्न होते हैं, अन्न, पानी और वचन। लोकोत्तर दृष्टि से 3 रत्न होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। कहते हैं कि हम जब हलवा बनाते हैं तो उसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, घी, आटा, पानी और गुड़ या शक्कर। अगर शक्कर न डालो तो शीरा भी स्वाद नहीं लगता। उसी तरह तपस्या में ज्ञान, दर्शन, चरित्र न हो, ज्ञान, दर्शन, चरित्र के साथ अगर तप न हो तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो जब भी तपस्या की अनुमोदना के हेतु ज्ञान, दर्शन, चारित्र जरूरी और साथ में तप भी जरूरी है। कितने दिन का तप किया? उन्होंने 9 दिन का तप किया। कितने साल से कर रहे हैं? ये प्रथम वर्ष है, हर साल वो तेला करते हैं, इस बार उन्होंने 9 की तपस्या की। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद वापी इस 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में दर वर्ष की तरह इस बार MBDT को नए रूप में आयोजित करने जा रही है। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव उसे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में कॉरपोरेट्स में ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित करके करने वाले हैं। अभी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को ब्रिटिश पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने पर सम्मानित भी किया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण वापी समाज को, कॉरपोरेट जगत को ये आह्वान करना चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे रक्तदान शिविरों पर आकर रक्तदान करें। मानव है, मानवता में प्राण भरे, आइए सब मिल रक्तदान करें। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड के तीथल तट पर सीढ़ियां जर्जर होने से पर्यटकों को नीचे उतरने में परेशानी। तीथल समुद्र तट पर कई सुविधाओं की कमी को दूर करने की लोगों की मांग। दमन वैदिक डेंटल कॉलेज में अंगदान अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पारडी हाईवे पर कार में शराब ले जाते हुए 8.64 लाख के माल सामान समेत ड्राइवर को पुलिस ने धर दबोचा। शराब भरवाने वाला अर्पित उर्फ कबीर सिंह और मंगवाने वाले समेत 2 वांटेड। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।